Assalamu alaikum students. Today I will be covering your experiment number 7 for your Digital Logic Design lab, and the title of this experiment is to design the BCD to 7 segment decoder circuit. In this experiment you will actually learn about how can you actually convert a BCD, a 4-bit BCD code, to a 7 segment display using a decoder circuit. This is a very interesting lab and a bit different from your previous experiences. So let's start discussing it. Okay, the first thing is that you need to understand at what components you might require to implement this lab. First you will require an IC 7447, and another component is a 7 segment display, of course, and I'll explain about this common anode type of 7 segment display later. And obviously you will require some wires to connect the circuit together, and the resistors. The resistors are actually optional in this case because you are going to implement this circuit in your multi-sim simulation, so you might not require them here, but in your practical lab the resistors are when you want to implement this circuit in practically on a hardware for a long-term project, or you need to build any prototype, so you might require resistors to control the voltage drop on the LEDs. And you will require a virtual breadboard, which is easily available in the NI Multisim. Okay, so the next thing is that you need to go through some background of what is a 7 segment display. In this there are two figures here. The first figure is actually showing you a 7 segment display in its physical form that is available in our labs as well, and you can see that there are actually 10 pins on this 7 segment display. 7 segment display is a very common device that you can actually see in digital clocks, stopwatches, and calculators, and other digital displays where you actually need to work on the numbers. So this display, on this display you can see that there is a figure 8 written here, and which means that it has in the bottom figure you can see that it has actually 7 segments: segment A, B, C, D, E, F, and G, right? And you can actually see another segment here which is called DP. It is a circular segment, and DP means a decimal point, and this is an optional segment. It is considered as the 8th LED segment on this 7 segment display. Now there are different types of 7 segment displays. There are different technologies available to actually illuminate this 7 segment. The most common type is an LCD, liquid crystal display type of 7 segment display, which you can actually see in your calculators. However, this particular display in this figure is an LED type of 7 segment display. In this the 7 segments A, B, C, D, E, F, G all have an LED inside of them, and each of these LEDs glow according to whatever the output is required. For example, if the output 8 is required to be displayed, then all the segments will be on. All the LEDs will actually glow. Now the important thing is that how will you actually count these 10 pins. The first pin is situated at the bottom side. Now how you will actually put this in the right position, that you know that the decimal point should be on the bottom side, on the bottom right side of any digit, right? So this means that the decimal point will actually tell you that how will you actually count the pin numbering.
So the first thing is that you will count the pin number 1, 2, 3, 4, 5 from the bottom side, and then 6, 7, 8, 9 and 10. Right? Okay, now the first segment A, this is associated with pin number 7. Segment B is associated with pin number 6. C is associated with pin number 4. Similarly, D with pin number 2 and E with pin number 1, and F with pin number 9 and G with pin number 10. Now the only pins remaining are pin number 8 and pin number 3. You can see that there is COM written both on pin number 3 and pin number 8. This is actually a common point, and interestingly this pin number 8 and pin number 3 both are internally shorted with each other. अब ये shorted क्यों है? Shorted होने का मतलब ये है कि आप इन दोनों पिन्स में से कोई एक पिन यूज़ करेंगे, either पिन नंबर 8 और पिन नंबर 3, और यही पिन है जिस पर आपने एक्चुअली सप्लाई अप्लाई करनी है. And this supply, based upon what type of 7-segment display is being used, either it is a common anode type or a common cathode type, डिफ़ाइन करेगा कि हमने पिन नंबर 8 या 3 COM पर आपने या कॉमन पॉइंट पर आपने कौन सी सप्लाई अप्लाई करनी है. Supply can be either the lower potential or the higher potential. Lower potential means that ground apply करेंगे और higher potential means that हम plus 5 volt VCC apply करेंगे. Right? इसको हम further in the later slides हम इसको देखते हैं. Okay. Now most important thing that दो types के 7-segment displays हैं. One is the common anode type and the other is the common cathode type. What's the difference? Difference इनकी outputs में नहीं है, ना इनकी physical appearance में है. Both common anode और common cathode type की जो internal figure होती है वो exactly same ऐसी ही होती है, इस तरह की, right? और internally जो इनमें difference है वो सिर्फ इनकी configuration का difference है. And what's that हमें common anode में नज़र आ रहा है कि LED is obviously a diode and it has a PN junction in it, and इसमें जो हमारे पास 7 LEDs लगी हुई हैं, इन 7 की 7 LEDs का जो P type है या जो positive end है, they are all shorted together, okay, and that are connected together to derive another pin, the common पिन, जो कि हम पिन नंबर 8 और पिन नंबर 3 में हम देखते हैं. एंड यही पिन है जिसके ऊपर आपने, यही कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर हमने सप्लाई अप्लाई करनी है. कॉमन एनोड के अंदर हम इसको VCC अप्लाई करते हैं, 5 वोल्ट्स, यानी हम हायर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस कॉमन पॉइंट पे. एंड कॉमन कैथोड में क्या डिफरेंस है? कॉमन कैथोड में P टाइप के बजाय N टाइप जो है ये सब की सब आपस में शॉर्टेड हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन पिन, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 3. राइट? अब आपने जब सप्लाई अप्लाई करनी है कॉमन कैथोड में, तो हम इसको एंड नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल हम इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज़ द ग्राउंड. सो डिफरेंस क्या है कि हमने कॉमन एनोड में जो कॉमन पॉइंट है उस पर VCC अप्लाई करनी है और कॉमन कैथोड में हमने उस पर पिन नंबर 8 या पिन नंबर 3 पर हमने ग्राउंड अप्लाई करना है. राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट either you want to use common anode and common cathode type. And let me tell you that in our labs we have the common cathode type of 7-segment displays instead of common anode, and how you will operate them is also a bit different. उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉमन एनोड जो है उसके लिए ड्राइवर IC जो है वो डिफरेंट है और कॉमन कैथोड के लिए ड्राइवर IC डिफरेंट है. इन द फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको बताया दैट 7447 IC आप यूज़ करेंगे फॉर द कॉमन एनोड टाइप ऑफ 7-segment display.
So 7447 IC is actually the driver IC for common anode, and common cathode के लिए IC change हो जाएगी. That will be the 7448 IC. So both of these ICs and both of these 7-segment displays are available in multisim. So you can select whichever you want, but however you have to make sure that आप combination ठीक use करें. 7447 IC जो है वो common cathode को operate नहीं कर सकती. It will not actually glow. और कॉमन 7447 के लिए आपको कॉमन एनोड 7-segment डिस्प्ले ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पर BCD कोड को डेसिमल आउटपुट्स उनकी शो की गई हैं एक इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग. when your 4-bit BCD code is 000 then decimal output आपकी 0 शो होनी चाहिए, राइट. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि BCD कोड जो है हम 0 से 9 तक ले रहे हैं, और इन वैल्यूज़ से आगे BCD कोड्स जो हैं वो डोंट केयर में आ जाएंगे. वाई? बिकॉज हमारे पास जो 7-segment डिस्प्ले है वो 9 से ऊपर वैल्यू शो नहीं कर सकता. हम चूँकि इस पर एक सिंगल 7-segment डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल नहीं यूज़ कर रहे, सो दैट्स वाई वी हैव अ लिमिटेशन दैट BCD कोड इफ़ अप्लाइड अबव 9, if we try to apply 1010 or 1011, then that means that आपकी आउटपुट के ऊपर 0 से 9 के बजाय कुछ irrelevant या अनइम्पोर्टेंट डिस्प्ले आ जाएगा जो कि आपका 0 से 9 में से कोई भी वैल्यू नहीं होगी. सो दिस मीन्स दैट वो डोंट केयर वैल्यूज़ हैं BCD कोड की. सो यू कैन नॉट अप्लाई apart from these 10 values any combination of BCD code. Okay, another thing is that यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि first जो आपकी figure है that is showing 0. Now to display 0 we understand that all segments will be open on except the G. Now in the second figure, to display 1, segment B and segment C should be on, and to display 2, segment A, B, G, E and D should be on, और बाकी दोनों जो है F और C ऑफ होंगे. That's how we actually view the outputs. So इसको हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी इसको डिकोड करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. हम प्रोसीजर पर जाते हैं. प्रोसीजर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉमन एनोड टाइप ऑफ 7-segment डिस्प्ले देन आपको ड्राइवर IC चाहिए 7447, राइट. यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि 7448 चाहिए होगी फॉर कॉमन कैथोड. इसकी डेटा शीट भी अवेलेबल है, ये लिंक मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. एंड दिस IC हैज़ एक्चुअली 16 पिन्स instead of 14 pins जो आपने इससे पहले ICs यूज़ की हैं. and in these 16 pins you will obviously count like this, that यहाँ पर एक notch बनी होगी जिस तरह हर typical IC के अंदर होती है, and इस notch की bottom side से आप pin counting start करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, right. And like all previous practices, pin number 8 जो last pin है bottom row की, that will be connected to ground, and pin number 16 will be connected to VCC. And after that आपने जो input supply करनी है those will be from the switches, switch 1, switch 2, switch 3 and switch 4. फॉर द केस ऑफ मल्टीसिम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि इंटरैक्टिव डिजिटल कांस्टेंट्स आप यूज़ करेंगे दैट विल सर्व एज स्विचेस. सो आपने जब कॉमन एनोड यूज़ करना है, सो इन दैट केस आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो D होगी, DCBA. फॉर द केस ऑफ कॉमन कैथोड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो A हो जाएगी. So your BCD code will start from A, B, C, D, and for common anode your code will start from DCBA. And how will you actually connect them? That switch 1 पर आप let's say apply कर रहे हैं D
तो आप स्विच 1 को पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दें, स्विच 2 को आप कनेक्ट कर दें पिन नंबर 2 के साथ, स्विच 3 को पिन नंबर 1 के साथ एंड स्विच 4 को पिन नंबर 7 के साथ, राइट। तो आपने जब इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज करना है सो आपको सबसे पहले स्विच 1 2 3 एंड 4 आपको 0 0 0 1 अगर करना है तो आपको क्या करना होगा कि स्विच 1 को 1 रखना होगा और बाकी सबको आप सॉरी पिन नंबर स्विच 1 को आपने 1 रखना है और बाकी सबको आपने 0 रखना है, राइट। तो आपने इस इनपुट कॉम्बिनेशंस को इस तरह से ध्यान रखना है। तो इनपुट्स जब आपने अप्लाई कर दी तो रिमेनिंग क्या चीज़ रह गई कि आपकी आउटपुट्स आपकी सारी हैं ऑपोजिट साइड, जो आपकी अपर साइड है आईसी की, उसमें आपके पास स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी अवेलेबल हैं। ये 7 सेगमेंट्स को ड्राइव करने के लिए है आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जो आईसी है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आईसी के अंदर आई टोल्ड यू दैट 10 पिन्स हैं, राइट। एंड this is your F segment, this is your G segment and this is मुझे ओके A and B, पिन नंबर 4 पर C है, 2 पर D है और 1 पर E है। A and B and this is your C। सो आपने अब क्या करना है कि इन आउटपुट्स को इनके रेलेवेंट जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की पिन्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर देना है। ए को आपने पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दिया, बी को पिन नंबर 6 के साथ कर दिया, राइट, एंड सी को पिन नंबर 4 के साथ कर दिया और डी को पिन नंबर 2 के साथ, ई को पिन नंबर 1 के साथ। इसी तरह एफ और जी को आपने इनकी रेलेवेंट पोजीशन के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ आफ्टर यू मेड योर कनेक्शंस, तो उसके बाद आपने क्या करना है दैट यू एक्चुअली सिमुलेट दिस सर्किट एंड देन आप आउटपुट्स इनपुट्स जो हैं स्विचेस से वेरी करेंगे बीसीडी कोड की एंड योर आउटपुट विल ग्लो अकॉर्डिंग टू योर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हम आगे अभी देखते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो पेन्स मैंने अभी इसमें से छोड़ दी हैं वो पेन्स कौन सी हैं? These ones, pin number 3, 4 and 5. Pin number 3, 4 and 5 they are special purpose pins। उनका इस particular experiment में कोई ख़ास काम नहीं है। You don't have to use all these pins। However, जो difference है वो ये है that in your lab you can actually keep all these 3 pins as open if you are not using it। बट सिमुलेशन पर्पस के लिए आप इनको ओपन नहीं छोड़ सकते, आपको इनको किसी न किसी सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी रेलेवेंट होगी। इफ़ यू आर यूजिंग 7447 आईसी देन आपको पिन नंबर 3, 4 और 5 को VCC के साथ कनेक्ट करना है। एंड इफ़ यू आर यूजिंग 7448 आईसी देन आपको इन तीनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर इनके साथ एक बबल भी लगा हुआ है विच इज़ शोइंग एक्चुअली कि ये इन्वर्टेड इनपुट्स ले रहे हैं, राइट। दैन पिन नंबर 3 का पर्पस मैं आपको जनरली बता देती हूँ। पिन नंबर 3 इज़ अ लैम्प टेस्ट LT टाइप पिन, और ये टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होती है कि या आपने अगर लेट से आपके पास एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड यू डोंट नो दैट आइदर इट इज़ कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, देन उसके लिए बेस्ट प्रोसीजर ये है दैट आप इस आईसी को आफ्टर कनेक्टिंग VCC एंड ग्राउंड, और आपने क्या करना है कि आउटपुट्स जो हैं उनको भी आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी ABCD को भी आपने FG को भी आपने कनेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज़ दैट यू अप्लाई अ वायर फ्रॉम पिन नंबर 3 टू आइदर पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 ऑफ योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, राइट। आपने इनको पिन नंबर 3 या पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले ग्लो हो जाता है सो दैट मीन्स दैट दिस इज़ योर कॉमन एनोड टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और अगर वो 7447 से ग्लो नहीं हो पा रहा
देन दैट मीन्स दैट आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो कॉमन एनोड टाइप का नहीं होगा, वो ऑब्वियसली कॉमन कैथोड टाइप का होगा. सो दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस. एंड पिन नंबर 4 एंड 5 जो है रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट एंड रिपल ब्लैंकिंग इनपुट यूज़ होते हैं किस पर्पस के लिए? रिपल ब्लैंकिंग इनपुट एंड आउटपुट, राइट. इसका पर्पस क्या होता है कि लेट्स से इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टॉप वॉच using or a calculator using 7 segment displays. तो कैलकुलेटर की आउटपुट्स हम अगर 2 7 सेगमेंट डिस्प्लेस की फॉर्म में हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी लेट्स से वो 20 तक आपको आउटपुट्स दे रहा है. सो दैट मीन्स कि आपके पास अगर कोई आउटपुट इस तरह की आ रही है कि लेट्स से 4 + 2, तो आपकी आउटपुट शो होनी चाहिए 0.6. 4 + 2 विल शो एक्चुअली 0.6. तो आप अगर क्या करते हैं कि ऑब्वियसली 2 7 सेगमेंट डिस्प्लेज हैं तो उनको ड्राइवर आईसीज भी 2 ही चाहिए. तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट ड्राइवर आईसी जो है उसकी रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं सेकंड 7 सेगमेंट 7 जो आपकी ड्राइवर आईसी है, 7 वाली जो ड्राइवर आईसी है उसकी रिपल ब्लैंकिंग इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट आपकी आउटपुट जो है वो 0.6 शो नहीं करेगा, वो उसको खाली 6 शो कर देगा, और आपका जो इररेलेवेंट या जो प्रीसीडिंग 0 है उसको वो ब्लैंक कर देगा. सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिक्वायरमेंट पर्पसेस. इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन योर आउटपुट. इट ओनली क्रिएट्स सम स्पेशल वर्जन ऑफ आउटपुट जो कि अगर आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं फॉर दैट पर्पस. तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि कॉमन एनोड के लिए LT RBI RBO को VCC के साथ कनेक्ट करना है, और कॉमन कैथोड के लिए आपने इनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है. ओके, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं. पहले मैं आपको टास्क बता दूँ. फर्स्ट टास्क इज़ दैट यू हैव टू डिज़ाइन दिस ट्रुथ टेबल. मैंने यहाँ पर BCD कोड यहाँ मेंशन किया हुआ है DCBA, जिसके अंदर D आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट है, A आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट है. तो इसके लिए आपने इसको फिल करना है किस तरह से, दैट यहाँ पर मैंने एक मेंशन किया हुआ है, शो किया हुआ है आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और आपने एक्चुअली क्या करना है, ये स्मॉल ABC स्मॉल कैप्स में जो आपको ABCDEFG नज़र आ रहे हैं, और H जो है दिस इज़ योर डेसिमल पॉइंट, राइट. अब आपने क्या करना है कि आपने 0 अगर डिस्प्ले कराना है तो 0 मीन्स कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट G ऑफ होगा. G ऑफ होगा तो आपने यहाँ पर 0 रखना है और बाकी सब जगह 1 रखना है. और H को आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो सब केसेस में 1 रख लें या सब केसेस में 0 रख लें, बिकॉज दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग. अगर आपने इसको 1 रखना है सो दैट मीन्स आप H को डायरेक्टली VCC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इसको 0 रखना है देन आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Similarly, what should be the output if you are trying to display 1? आपको ये सारा ट्रुथ टेबल फिल करना है, राइट. आफ्टर दैट जो सेकंड टास्क है, व्हाट्स दैट आपने आपके पास जो 8 आउटपुट्स आई हैं यहाँ पर, इन सब आउटपुट्स की आपने इक्वेशन बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिराइव करनी है, राइट. एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, दैट लेट्स से आपके पास जो 16 बिट का जो 16 ब्लॉक्स का जो के मैप बनता है, आपने के मैप्स यूज़ करने हैं, और इन के मैप्स में आपके पास जो 10 BCD कोड बिट्स हैं या BCD कोड्स हैं, इनपुट्स जो हैं वो आपके पास आउटपुट पर यहाँ पर फिल होंगी. बट जो लास्ट 6 हैं, जो लास्ट 6 आपके पास जो होंगी फ्रॉम BCD कोड 9 टू अप टिल 15, वो आपके पास क्या होंगी, डोंट केयर होंगी. सो आपने डोंट केयर सिचुएशन के अंदर सब जगह क्रॉस डाल देना. आफ्टर दैट आप इनको
ग्रुपिंग करके जो भी ए की, ये फॉर ए है, इसी तरह ए बी की इक्वेशन बनेगी, सी की बनेगी, डी की, ई एफ एंड जी एंड एच, सबकी इक्वेशंस बनाने के बाद आपने जो थर्ड लास्ट काम करना है वो ये करना है कि हर एक के लिए आपने सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करनी है। सर्किट डायग्राम एक सिंगल सर्किट डायग्राम होगी, इट विच शुड हैव 8 आउटपुट्स, जिसमें से आप एच वाली को बेशक इग्नोर कर दें क्योंकि इट हैज़ अ कांस्टेंट इन आउटपुट, इट डजंट मैटर दैट आप उसको सर्किट के अंदर शो करें या ना करें, राइट। एंड इन द लास्ट मैं आपको मल्टीसिम इम्प्लीमेंटेशन ब्रीफली दिखा देती हूँ। ये आईसी अवेलेबल है एंड इसके अंदर कॉमन एनोड सी ए आपको मेंशन कर रहा है कि ये कॉमन एनोड है, सी के आपको मेंशन करेगा कॉमन कैथोड है। यू जस्ट हैव टू सर्च दीज components and simply drop them on the design circuit, and after that you connect them all the components. So I hope that you have found this video as fruitful. I hope so. inshallah आपसे दोबारा इस topic पर for your next lab आपसे बात होती है inshallah. I'm going to end this session now. Allah Hafiz.